Hello students and welcome back to this beautiful chapter of thermodynamics. In this module, this particular video, we are going to talk about enthalpy changes. हम enthalpy changes के बारे में बात करने वाले हैं. Last video में हमने ये देखा था कि what is enthalpy and here we are going to talk about enthalpy changes. जब कोई process होता है तो what are the energy changes, what are the enthalpy changes that happen within that process. We are going to focus on physical processes as well as chemical processes. Physical processes जैसे कि मान लीजिए phase transition. Okay, phase transition is when a substance changes from one state to another state. Like for example, melting. Okay, melting is also called as fusion. You can have vaporization and you can also have sublimation. ये जितनी भी सारी चीजें हैं यहां पर किसी state का transition हो रहा है, एक substance है which is changing from one state to another state. So that is phase transition. Another type of physical process that we can talk about is atomic or molecular changes. Okay, atomic या molecular level पे जो changes होते हैं उनको हम atomic और molecular changes बोलते हैं. For example, we can have atomization when molecules are split into atoms. That is called as atomization. तो यहां पर एक atomic या एक molecular level पे एक change हुआ है. So that is atomization. You can also have allotropic transformation. यानी कि जब एक type का substance अपने ही किसी दूसरे type के substance में convert होता है. For example, interconversion between monoclinic sulfur and rhombic sulfur, right? तो monoclinic sulfur और rhombic sulfur दोनों ही sulfur है, लेकिन इन दोनों का जो आपस में जो interconversion होता है that is allotropic transformation. इन substances को हम basically allotropes कहते हैं. कार्बन के भी अलग अलग allotropes होते हैं, ग्राफाइट हुआ, डायमंड हुआ, and so on and so forth. So that type of transformation is called as allotropic transformation. Of course, this transformation is taking place at an atomic level. Another type of atomic or molecular change that we can talk about can be ionization and electron gain enthalpy. Now, this is something जो हमें already पता है, ये हम 11th standard के periodic table से ये हम पढ़ते आ रहे हैं. Ionization enthalpy यानी कि जब atom में से electrons are ripped away creating cations, right? There are some atoms and we are removing the outermost shell electrons and we are creating ions. That is called as ionization enthalpy. How much energy is required to do it? Electron gain enthalpy is the opposite. If you have an atom और उसके ऊपर हम electron लगा देते हैं, we attach an electron to it and we make a negatively charged ion, also called as anion. तो उसको हम कहते हैं electron gain enthalpy. यहां पर सब जगह पे atomic and molecular changes हो रहे हैं. Another type of physical process that we can talk about is solution. यानी कि एक solution जब बनता है तब किस तरह के interactions होते हैं. We can also talk about dilution. एक solution को जब हम dilute करते हैं तब किस तरह के interactions होते हैं, उसमें से क्या energy absorb या release होती है. That can be studied in enthalpy of dilution. These are all enthalpy changes in physical processes. We are also going to talk about enthalpy of chemical processes, and we have all these chemical processes to talk about. We have formation of substances. We have combustion of substances, right? Apart from that, we are also going to study enthalpy of reaction. अब ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है ये दो टर्म्स में होता है. एक होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एक होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. ये दोनों तरह से हम इसको स्टडी करने वाले हैं, लेकिन बॉटम लाइन रिएक्शन हो रहा है तो कोई केमिकल प्रोसेस तो होगा ही, राइट? सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ केमिकल प्रोसेस. यू नो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is a chemical process, is enthalpy of a chemical process. All right. Apart from this, we are also going to study enthalpy of neutralization. All right. न्यूट्रलाइजेशन भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस ही है
ऑफ कोर्स इट कैन बी आर्ग्यूड कि ये न्यूट्रलाइजेशन को हम सोल्यूशन में ही स्टडी कर सकते थे, बट देन इट्स फाइन. Neutralization is also a type of a chemical process, so we can study that in enthalpy of chemical processes. These are all the different processes जिनके enthalpy changes हम study करने वाले हैं यहाँ पे. So without much further ado, let's get started. First thing I'm going to do is I'm going to give you a standard definition template. ये जितनी भी enthalpies हैं, most of them can be defined by using a standard definition template. बस इस basic टेम्पलेट को हमें याद रखना है, हम किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं. ऑफ कोर्स समझेंगे भी, लेकिन डिफाइन करने का टेम्पलेट भी हम याद रखेंगे. ओके, सो द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies any process, you know, fusion, sublimation, vaporization, atomization. So the enthalpy change that accompanies a process of 1 mole of a substance without any change in temperature and pressure is called as enthalpy of that particular process. So you need to remember this template. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अगर हम बात करें सबसे पहले एंथैल्पी की, यानी कि फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग, ठीक है, तो हम उस एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट? तो देखिए, अब इस टेम्पलेट के हिसाब से वी कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन. द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड. अब यहां पर फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली सॉलिड तो होगा ही. द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड without any change in temperature at constant pressure is called as enthalpy of fusion. Simple. Now, अगर हम एक simple substance की बात करें, जैसे कि ice का fusion, ice की melting. So what's the melting point of ice, students? Ice का melting point क्या होता है? हम सब जानते हैं, ice का melting point होता है 0 डिग्री सेल्सियस. So यानी कि we have ice getting converted to water. ये प्रोसेस होने के लिए इतनी हीट अब्सॉर्ब करना जरूरी है एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. ओके, अब बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो 0 डिग्री सेल्सियस है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली होता क्या है? क्या आइस मेल्ट होता है या वाटर फ्रीज होता है? What really happens at 0 डिग्री सेल्सियस? अगर ये आपके दिमाग में आया है तो डोंट वरी. एट 0 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली देखा जाए तो एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर एक्चुअली देखा जाए तो एक इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि यहां पर आइस एंड वाटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम. इट्स अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, और ये फिजिकल इक्विलिब्रियम आपने 11th में पढ़ा हुआ है इन अ चैप्टर कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. तो यहां पर अगर देखा जाए एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस पे एक इक्विलिब्रियम होता है. अब अगर इस इक्विलिब्रियम पे अगर आपने थोड़ी सी हीट दे दी, सो दैट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मेल्टिंग, और उतनी ही हीट अगर आपने निकाल दी, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फ्रीजिंग. इसको हम ले शातलियर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. सो वी कैन से कि यहां पर क्योंकि हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, दिस मच हीट इज अब्सॉर्ब, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अगर इसी का मुझे रिवर्स लिखना होता, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग अगर मुझे यहां पर लिखना होता, बिकॉज द रिवर्स ऑफ फ्यूजन इज फ्रीजिंग. जितनी हीट मैंने ऐड की है तो मेल्टिंग के तरफ वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है. अगर उतनी ही हीट मैंने रिमूव की होती, इक्विलिब्रियम वुड हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स freezing. So I can also write the equation for freezing, water getting converted into ice. यहां पर मुझे कितनी हीट निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? That's correct. मुझे यहां पर 6.01 किलो जूल निकालना पड़ेगा पर मोल at 0 degree Celsius. So this will be the enthalpy of freezing of water.
ओके ये जो था ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस था, और ये जो है ये एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन भी हम यहीं पर कर सकते हैं, सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दैट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, नाउ जस्ट इमेजिन क्या होगा ये, हमको पता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेम्पलेट, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं द एंथैल्पी चेंज that accompanies the vaporization of 1 mole of a liquid, because अब liquid है तो उसका vaporization हो रहा है, the enthalpy change that accompanies the vaporization of 1 mole of a liquid without change in temperature at constant pressure is called enthalpy of vaporization. Okay students, again इसकी equation भी हम लिख सकते हैं, we have liquid water getting converted into water vapor, और इसके लिए मुझे 40.7 किलो जूल्स का हीट देना पड़ता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। यही सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो इक्विलिब्रियम है, वाटर एंड वाटर वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इफ यू गिव दिस मच एडिशनल हीट, इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इतनी ही हीट अगर मैंने निकाल ली बाहर, इक्विलिब्रियम कंडेंसेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन इज कंडेंसेशन। तो अगर गैस से लिक्विड वाटर हमें बनाना है तो इतनी हीट हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी हम पढ़ सकते हैं। अब आप सोचिए व्हाट विल बी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जस्ट थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट विल इट बी? द एंथैल्पी चेंज that accompanies the sublimation. That's correct. So the enthalpy change that accompanies the sublimation of 1 mole of solid directly into vapor without any change in temperature and at constant pressure, that's called as enthalpy of sublimation. यानी कि अगर solid को directly हम vapor में convert करें, ठीक है, that is called as sublimation, तो उसकी जो एंथैल्पी होती है that is enthalpy of sublimation. I hope that is clear to all of you. इसकी भी मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। If you have ice, और ये आइस को बिना लिक्विड वाटर में कन्वर्ट किए आप डायरेक्टली इसे वेपर स्टेट में लेके जाते हैं, अगर इफ यू डायरेक्टली कन्वर्ट दिस इनटू वेपर स्टेट, सो इसके लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी दैट विल बी 51.08 किलो जूल पर मोल, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप सोचें इस बारे में, तो यहां पर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है और हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी है। सो हियर वी आर, एक तरफ हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, एक तरफ हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। लेट्स राइट हियर वेपराइजेशन। इफ यू रिकॉल द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि आइस से लिक्विड वाटर बनाने का जो हीट है, जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा था। When ice gets converted into water, 6.01 kilojoule per mole of heat is required. So I know the enthalpy of fusion, that is 6.01 kilojoule per mole. I also know the enthalpy of vaporization. Now just think about it. अगर मैं इन दोनों equations को add कर दूं along with the delta H values के साथ अगर मैं इन दोनों equations को add करूं, तो लिक्विड वाटर एंड लिक्विड वाटर दोनों ऑपोजिट साइड्स पे है, कैंसल आउट हो जाता है और मुझे डायरेक्टली मिलता है आइस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, इनटू वाटर वेपर। और अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो जो मुझे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 51.08 किलो जूल पर मोल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि जब फ्यूजन और वेपराइजेशन के एंथैल्पीज को मैं ऐड कर रहा हूं, मुझे सब्लिमेशन का एंथैल्पी मिल रहा है। I can conveniently say that enthalpy of sublimation is an addition of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. I hope this is clear to all of you. इसका मैं आपको दोबारा एक कॉल बैक दूंगा when we study Hess's law of constant heat summation. वहां पर मैं आपको एक इसका कॉल बैक दूंगा। यहां से आपको एक और चीज समझ में आ गई होगी कि एंथैल्पी is a state function.
हमने पिछले एक लेक्चर में स्टडी किया था दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। स्टूडेंट्स, पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, liquid to vapor. So here the reaction is taking place in 2 steps, and here the reaction is taking place in 1 step, but still the net enthalpy change is the same. It doesn't get affected whether you conduct this reaction in 2 steps or 1 step. यानी कि enthalpy जो है वो path पे depend नहीं करता, सिर्फ initial और final state पे depend करता है. It is a state function, it is not a path function. तो ये एक चीज आपको अभी reiterate हो गई होगी. Okay, let's move on. और अब हम पढ़ते हैं atomic or molecular changes. We will study all these different enthalpy changes, atomization, allotropic transformation, ionization, electron gain. अब इन सबको पढ़ने की बारी आ गई है. So let's get started with the enthalpy changes of atomic or molecular changes. Okay, सबसे पहले हम बात करेंगे enthalpy of atomization की. We will talk about enthalpy of atomization. As the name suggests, enthalpy of atomization यानी कि हमारे पास 1 मोल gaseous substance होगा. Listen to it carefully. 1 mole of gaseous substance, and we are splitting it into its respective component atoms. Okay, so what do you mean by enthalpy of atomization? Again, take your standard definition template and write down the definition. What will it be? It is the enthalpy change that accompanies the dissociation of all the molecules of 1 mole of gaseous phase into gaseous atoms. Okay, so you are taking 1 mole of gaseous substance and you are splitting it into its component atoms. The enthalpy change that accompanies the dissociation of all the molecules in 1 mole of gaseous phase into gaseous atoms without change in temperature at constant pressure, that's called as enthalpy of atomization. Very simple example, if you take chlorine molecule and you split all the chlorine molecules, okay, 1 mole of chlorine gas, and you split all these molecules into respective atoms, ठीक है, तो 1 mole chlorine gas हमने लिया और इसको हमने split किया chlorine atoms में. इसके लिए हमें इतनी हीट देनी पड़ेगी, 242 kilojoules per mole. I hope that is clear to all of you. Okay, you should know this, dear students. जब भी bond break होता है, whenever a bond is broken, energy is normally absorbed, and when a new bond is formed, energy is released. All right, the best way to look at it is this. When this new bond was formed, a lot of energy was released, right? तो जब bond form होता है तब energy release होती है, और जब bond break होता है तब energy absorb होती है. तो you can see यहाँ पर enthalpy की value positive है, energy यहाँ पर absorb हो रही है. Okay, I hope this is clear to all of you. Same example I can give you with some other gas. Let's say methane. अगर इसे हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स हमें 1 कार्बन मिलेगा और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हमें मिलेंगे. सो हियर वी आर स्प्लिटिंग मीथेन इनटू कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स. इन ऑर्डर टू डू this much heat has to be absorbed. 1660 kilojoules per mole of heat has to be absorbed. अगर आपको मीथेन के मॉलिक्यूल को तोड़ना है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को नहीं, 1 मोल मीथेन हमको चाहिए उसके लिए, यानी कि आप सब जानते हैं 1 मोल मीथेन यानी कि कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन अगर होंगे तो उनको तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी लगेगी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगती है. दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन. सो द एंथैल्पी चेंज accompanying the transformation of 1 mole of one allotropic form of a substance into another form, this is called as enthalpy of allotropic
ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास रोम्बिक सल्फर है और रोम्बिक सल्फर को अगर मुझे मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 1 मोल रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे सिर्फ 1.3 किलो जूल पर मोल की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोम्बिक सल्फर गेटिंग कन्वर्टेड टू मोनोक्लिनिक सल्फर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल या सिर्फ कुछ रोम्बिक सल्फर नहीं, मुझे 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर चाहिए होगा इसके लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let's move on and let's study the different types, the other types of enthalpy of atomic or molecular changes. Let's study enthalpy of ionization. Again, ये एक ऐसी चीज है जो हम 11th standard से पढ़ते आ रहे हैं। We know what is ionization. It is formation of ion, to be specific cation. Okay? ये बात ध्यान रखना। Enthalpy of ionization यानी कि एक तरह से formation of cation. ओके, एनायन के लिए हमारे पास एक अलग एंथैल्पी है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ओके, ये एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, कैटायन बनाने का जो एंथैल्पी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऑलराइट, पीरियोडिक टेबल 11th स्टैंडर्ड हमने ये पढ़ा हुआ है। सो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन from each atom or ion in 1 mole of gaseous atoms or ions। यानी कि हमारे पास 1 mole atoms या 1 mole ions है और उनमें से हर एक स्पीशी में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है, ओके, सो द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies the removal of an electron from each atom or ion in 1 mole of gaseous atoms or ions without any change in temperature at constant pressure, this is called as enthalpy of ionization. It's very very simple students. मान लीजिए अगर आपके पास सोडियम मेटल है और सोडियम मेटल सॉलिड नहीं है, इसको आप गैसियस कर चुके हैं, इसमें से ये सोडियम गैस में से, ठीक है, सिर्फ एक एटम नहीं 1 मोल का बात कर रहा हूं मैं फिर से। सो सोडियम गैस में से अगर मुझे हर एक एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, आई विल गेट Na+, और इसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट विल बी 494 किलो जूल पर मोल। ये इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक चीज आपको यह समझ में आनी चाहिए कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, इट इज ऑलवेज लार्जर than the first ionization enthalpy. Second ionization enthalpy is always larger than the first because अब एग्जाम्पल के तौर पे अब अगर हम कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम पूरा गैसियस स्टेट में है, उसको हीट करके हमने गैसियस बनाया है। यहां से हर एक एटम में से अगर हमें एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वी विल गेट Ca+ एंड एन इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमें 590 किलो जूल्स पर मोल की जरूरत पड़ती है। नाउ जस्ट इमेजिन, ये कैल्शियम एटम जो था ये तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था, बट नाउ व्हाट हैव वी गॉट? नाउ वी हैव गॉट Ca+ व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कैटायन बन चुका है ऑलरेडी, इट विल होल्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली। अब यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। सो Ca+ में से अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और Ca2+ बनाना है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इट विल बी सिग्निफिकेंट लार्जर देन द फर्स्ट। सो अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज लार्जर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। Since we are talking about ionization, we can also talk about electron gain enthalpy. इसकी भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, हाउ विल यू डिफाइन इट? अगेन टेक योर स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेम्पलेट। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप कैटायन नहीं बनाएंगे, यहां पर आप एनायन बनाएंगे, विच मीन्स यू विल एड एन इलेक्ट्रॉन।
So there we are. It is defined as the enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms accept electrons to form gaseous anions. तो अब यहां पर हम anions क्रिएट कर रहे हैं. मान लीजिए अगर आपके पास क्लोरीन के एटम्स हैं और अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, you know that chlorine can readily accept electron and become Cl-. तो Cl- बनने के लिए यहां पर अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, that will require this much enthalpy. That will release this much enthalpy. अब यहां पर एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है बिकॉज क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है. सो एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड ओवर हियर. I hope this is clear to all of you. Okay? Another thing that you need to understand, जैसे हमने यहां पर बात किया था कि the second ionization enthalpy is always greater than the first ionization enthalpy. Second ionization enthalpy हमेशा ज्यादा होती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. यहां पर अगर मैं बात करूं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टैंड वन थिंग स्टूडेंट्स, यहां पर Cl- बन चुका है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है. अब अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन यहां लगाना पड़ा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एनर्जी डालनी पड़ेगी. इट इज लाइक अगर आप मैग्नेट के लाइक पोल्स को साथ में लाने का ट्राई करते हो तो आपको एफर्ट डालना पड़ता है, आपको एनर्जी डालनी पड़ती है. तो अब अगर मुझे इसमें एक और इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ा, आई विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो द सेकेंड electron gain enthalpy will be endothermic. It will not be exothermic. This one was exothermic because एक तरह से बॉन्ड बन रहा था. एंड अभी मैंने आपको बताया था जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है. बट जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वहां पर वो जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो हमने ये जितने भी एंथैल्पीज स्टडी किए हैं, ऑल दीज एंथैल्पीज दैट वी हैव स्टडीड, इन सबको हम अभी अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई दैट इन बॉन्ड हेबर cycle for formation of NaCl. It's a very simple cycle. यहां पर होता ऐसा है कि हम सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस से NaCl बनाते हैं. ओके और उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम स्टडी करने का ट्राई करते हैं. तो अगर आप देखोगे इफ यू हैव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, तो सबसे पहले चलो हम सोडियम का आयन बनाने का देखते हैं. First thing that you will have to do is you will have to take this sodium, which is solid right now, and you will have to convert it into a gas. And we know that this process is called as sublimation. So there you are, you have this sodium solid, which now gets converted to sodium gas. ये करने के लिए आपको इतनी heat absorb करनी पड़ेगी, 109 kilojoules. As you can see, this is enthalpy of sublimation. Okay, I hope this is clear to all of you. अब यहां पर सोडियम का गैस बन चुका है. यहां से अब हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ताकि ये Na+ में कन्वर्ट हो जाए. सो हियर वी आर, यहां पर हम सोडियम को Na+ में कन्वर्ट करेंगे. एंड फॉर दिस जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, सोडियम से सोडियम प्लस Na+, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है बाहर. सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. 496 किलोजूल ऑफ हीट विल हैव टू बी अब्सॉर्ब्ड. सोडियम का आयन तैयार हो गया है, लेकिन क्लोरीन का आयन हम कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, Cl2 जो है उसे ब्रेक करके Cl में कन्वर्ट करेंगे. बिकॉज NaCl में जो Cl- आएगा यानी कि जो क्लोराइड आएगा उसके लिए मुझे क्लोरीन को तोड़ना तो होगा ही. सो वी विल टेक दिस हाफ Cl2 and we will convert it into Cl, but we know what this is. We are splitting a molecule into its respective atom. So this is enthalpy of atomization, and 122 kilojoule of heat will have to be absorbed here for this. अब क्योंकि हमने यहां पर सोडियम का आयन बना दिया है, क्लोरीन का भी हमने एटम यहां पे बना दिया है गैसियस. अब हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगाना है. जब इलेक्ट्रॉन हम इसमें लगाएंगे एनर्जी विल बी रिलीज्ड. सो हियर वी आर, chlorine atom now getting converted to chlorine ion by gaining an electron, and this, as we know, this is electron gain enthalpy. वो होगा यहां पर -348 किलोजूल. अब हमारे पास
Na+ एंड Cl- आयन तैयार हो गया है। तो और कुछ नहीं करना, बस ये दोनों साथ में अरेंज हो जाए, एक अच्छा क्रिस्टल लैटिस यहां पर बन जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। साथ में अरेंज, लैटिस में अरेंज होने का जो एंथैल्पी है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। और तब जाके मुझे मिलेगा सोडियम क्लोराइड इन इट्स सॉलिड फॉर्म, इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये हो गया इसका लैटिस एंथैल्पी, और ये होता है -790 किलो जूल्स। ओके, नाउ NaCl हमने कहां से बनाया? NaCl हमने सोडियम और क्लोरीन से बनाया, जो अपने सॉलिड और गैसियस स्टेट में थे रिस्पेक्टिवली। वी नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि ये जितना प्रोसेस हुआ मल्टीपल स्टेप्स में, अगर एक स्टेप में होता तो भी नेट एंथैल्पी चेंज तो उतना ही होना था। यानी कि इस प्रोसेस का नेट डिफरेंस और ये डायरेक्ट प्रोसेस का नेट डिफरेंस इज गोइंग टू बी द सेम, राइट? तो यहां से मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं NaCl का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl को फॉर्म करने के लिए कितनी हीट लगी, बस मुझे यहां पर डिफरेंसेस लेने हैं, एंड आई कैन डायरेक्टली गेट दिस आंसर एज -411 किलो जूल। सो दिस इज बॉर्न-हेबर साइकिल। एक तरह से ये साइकिल आपको ये बताता है कि जो एंथैल्पी है, इट्स अ स्टेट फंक्शन। You can take a longer path or a shorter path, but the net enthalpy change is going to remain the same. I hope this is clear to all of you. तो यहां तक स्टूडेंट्स हमने जितनी भी एंथैल्पीज पढ़ी हैं, all these enthalpies, okay, they are all enthalpies of physical changes. Chemical changes तो हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं, बट इसी वीडियो के पार्ट 2 में अभी हम केमिकल चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, so far we have discussed enthalpy of physical transition and enthalpy of atomic or molecular changes. उसी के ऊपर हमने बॉर्न-हेबर साइकिल भी देखी है। Okay, in the next part of this video, part 2 of enthalpy changes, we are going to discuss about enthalpy of solution, and then we are going to talk about enthalpy of chemical changes. I hope you have understood this concept very well. Thank you so much for watching. Please do like, comment, share and subscribe, and press the bell icon for latest notifications so that you can be informed about our latest updates. Thank you so much for watching.